فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، مکتوب 53 27واں حصہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ سے، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی۔ ہم کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر مکتوب 53 کا 27واں حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عربی کے پیراگراف کے آغاز کے چند الفاظ اور اختتام کے الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ایاکا والدماء والسفکھا، اور اختتامی الفاظ ہیں اولیاء المقتولی حقہم۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ مکتوب 53 وہی ہے جو کہ بہت مشہور ہے، جو کہ امام علیہ السلام نے مالک اشتر کے نام لکھا تھا۔ یہ کل 30 اس کے حصوں پر مشتمل کیا گیا ہے، جس میں سے 15 حصے والیوم 10 میں پڑھے تھے۔ ہم نے 15 حصے والیوم 10 میں ہیں، جبکہ اس کتاب کے والیوم 11 میں 16 سے لے کر 30 تک حصے ہیں۔ ہم 27واں حصہ پڑھتے ہیں۔ ہم نے اس کا اب ترجمہ پڑھنا ہے۔ انورٹڈ کاما، دیکھو ناحق خون ریزیوں سے دامن بچائے رکھنا، کیونکہ عذاب الہی سے قریب اور پاداش کے لحاظ سے سخت اور نعمتوں کے سلب ہونے اور عمر کے خاتمے کا سبب ناحق خون ریزی سے زیادہ کوئی شے نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ سب سے پہلے جو فیصلہ کرے گا وہ انہی خونوں کا ہوگا جو بندگان خدا نے ایک دوسرے کے بہائے ہیں۔ لہٰذا ناحق خون بہا کر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی کبھی کوشش نہ کرنا، کیونکہ یہ چیز اقتدار کو کمزور اور کھوکھلا کر دینے والی ہوتی ہے، بلکہ اس کو بنیادوں سے ہلا کر دوسروں کو سونپ دینے والی، اور جان بوجھ کر قتل کے جرم میں اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر چل سکے گا نہ میرے سامنے، کیونکہ اس میں قصاص ضروری ہے۔ اور اگر غلطی سے تم اس کے مرتکب ہو جاؤ اور سزا دینے میں تمہارا کوڑا یا تلوار یا ہاتھ حد سے بڑھ جائے، اس لیے کہ کبھی گھونسا اور اس سے بھی چھوٹی ضرب ہلاکت کا سبب ہو جایا کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اقتدار کے نشے میں بے خود ہو کر مقتول کا خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچانے میں کوتاہی نہ کرنا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آئیے تفصیل پڑھتے ہیں اس کی تفسیر اور شرح۔ عنوان ہے ناحق خون بہانے سے بچے رہو۔ تفصیلات کو چوہیں کہ امام علیہ السلام عہد نامے کے اس حصے میں ایک اور نہایت اہم مسئلے پر گفتگو فرماتے ہیں، اور وہ انسان کے خون کا احترام ہے۔ آپ علیہ السلام متعدد تعبیرات کے ساتھ مالک اشتر رضی اللہ کو اس کام سے پرہیز کی تاکید فرماتے ہیں۔ یقیناً مالک اشتر رضی اللہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو ناحق کسی کا خون بہائیں، بلکہ اس کلام کا مقصود یہ ہے کہ جب کسی سے متعلق سزائے موت کا حکم سناؤ تو اس میں نہایت دقت سے کام لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بے گناہ کا خون بہایا جائے۔ پہلے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما دیکھو ناحق خون ریزیوں سے دامن بچائے رکھنا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ جملہ در حقیقت توضیح بعد از جمال کے قبیل سے ہے۔ پہلے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خون ریزی سے بچے رہو، اور پھر اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ مقصود ناحق خون بہانے سے بچے رہنا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اس قبیح فعل کے مکروہ اور جان لیوا
अवाक़िब व नताइज को बयान फरमाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि अज़ाब इलाही से करीब और पादाश के लिहाज से सख्त और नेमतों के सल्ब होने और उम्र के खात्मे का सबब नाहक खूंरेजी से ज्यादा कोई शय नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इमाम अलैहिस्सलाम ऐसा नाहक खून बहाने के 4 निहायत कबीह आसार बयान फरमाते हैं। शदीद इलाही इंतकाम, दर्दनाक सजा, नेमतों जैसे सुकून, सलामतो सादत और अमनो अमान का जवाल, नीज हुकूमत व इक़्तिदार का जवाल। तारीख भी इस बात की निशानदही करती है कि किस तरह खून नाहक इसके बहाने वाले के दामनगीर होता है और उसे मौत की खाई में गिरा देता है। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम 5वां मकरू असर बयान फरमाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा, और क़यामत के दिन अल्लाह सबसे पहले जो फैसला करेगा वो इन्हीं खूनों का होगा जो बंदगाने खुदा ने एक दूसरे के बहाए हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये बात दुरुस्त है कि क़यामत में हिसाब बहुत तेजी से अंजाम पाता है, लेकिन ये अच्छे और बुरे आमाल की जांच पड़ताल के लिए माने नहीं बनता। रिवायात में आया है इन्वर्टेड कॉमा कि क़यामत के दिन बंदे के नेक आमाल में जिस चीज पर सबसे पहले नजर पड़ती है वो नमाज है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चुनाचे बड़े गुनाहों में से जिसके बारे में खुदा सबसे पहले हुक्म सुनाता है वो खूने नाहक है। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम दूसरे 4 कबीह आसार की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा, लिहाजा नाहक खून बहाकर अपने इक़्तिदार को मजबूत करने की कभी कोशिश न करना, क्योंकि ये चीज इक़्तिदार को कमजोर और खोखला कर देने वाली होती है, बल्कि इसको बुनियादों से हिलाकर दूसरों को सौंप देने वाली होती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इन 4 जुमलों, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है युज़इफ़ु, युहिनु, युज़ीलु व यनकुलु, ये ब्रैकेट क्लोज। इनमें फर्क वाज़े है, क्योंकि कभी मुमकिन है कि कोई चीज कमजोर हो जाए लेकिन उसके पाए सुस्त ना हुए हों और उनके साथ ही एक अरसा बाकी रहे, और कभी मुमकिन है कि कोई चीज जाहिरन कमजोर ना हुई हो लेकिन उसके पाए कमजोर हुए हों और आइंदा दोनों में इसके लिए कोई खतरा लाहक हो। मसलन एक ताकतवर हुकूमत का लश्कर किसी हादसे के नतीजे में निस्फ होकर रह जाता है तो ये एक तरह की कमजोरी है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि लश्कर इसी तादाद में बाकी रहता है लेकिन पांव सुस्त पड़ जाते हैं, तो ऐसी सूरत में किसी भी वक्त उसे खतरा लाहक हो सकता है। फिर लिखा है लफ्ज है युज़ीलुहु का जुमला किसी हुकूमत की मुकम्मल नाबूदी की तरफ इशारा है, जैसे वो ममालिक जो शिकस्त के नतीजे में किसी इस्तेमारी हुकूमत के ज़ेर असर या उससे मुल्हक हो जाते हैं। यनकुलुहु का जुमला इस मतलब की तरफ इशारा है कि हुकूमत तो बाकी है लेकिन एक ग्रोह दूसरे ग्रोह का जानशीन बनता है। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम कत्ले अमदी ऐन मीम दाल छोटी के मकरू नताइज की तरफ इशारा फरमाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा, और जानबूझकर कत्ल के जुर्म में अल्लाह के सामने तुम्हारा कोई उज़्र चल सकेगा ना मेरे सामने। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये इस मतलब की तरफ इशारा है कि जो कुछ गुज़िश्ता बहसों में गुजर गया वो इन कत्लों से मुताल्लिक है जो गलती से अंजाम पाते हैं, लेकिन जहां तक कत्ले अमदी यानी अमदन की बात है तो उसकी सजा बहुत भारी है। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है क्योंकि इसमें कसास जरूरी है, और उसके बाद मौला मजीद फरमा रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के, और अगर गलती से तुम कत्ल के मुर्तकिब हो जाओ और सजा देने में तुम्हारा कोड़ा या तलवार या हाथ हद से बढ़ जाए इसलिए कि कभी घूंसा और उससे भी छोटी ज़र्ब हलाकत का सबब हो जाया करती है, तो ऐसी सूरत में इक़्तिदार के नशे में बेखुद होकर मकतूल का खून बहा उसके वारिसों तक पहुंचाने में कोताही न करना। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। लिखा है हम जानते हैं कि जो कुछ फुक़हा ने आयात कुरानी और अहादीस से इस्तिफादा किया है उसके मुताबिक कत्ल की 3 किस्में हैं। एक कत्ल अमदी, ये आयन से है, आयन मीम दाल छोटी है, ये वहां होता है जहां मुजरिम का इरादा मद्दे मुकाबिल का कत्ल हो, या
किसी ऐसे काम के दरपे हो जाए जो उमूमन कत्ल का बायस बनता है, अगरचे उसका कस्द जान से मारने का ना हो, जैसे नाक पर कारी ज़रब लगाना जो गालिबन मौत का सबब बनता है, तो अगरचे मुजरिम कत्ल का कस्द ना भी रखता हो, उससे कसास लिया जाएगा, सिवाय इसके कि खून के वारिस और कातिल के दरमियान सुलह हो जाए। 2. कत्ले अमदी का मुशाबे, और ये वहाँ होता है कि इंसान कोई ऐसा काम करे जो उमूमन कत्ल का सबब नहीं बनता लेकिन इत्तेफाक से मौत का सबब बन गया हो, जैसे कोई शख्स किसी को सुई चुभोए जिसके सबब अचानक घबराहट से उसकी मौत वाक़े हो जाए, उसे कत्ले अमदी का शुबा कहते हैं। सड़कों पर वाक़े होने वाले गाड़ियों के अक्सर हादसात इसी कबील से हैं और इसका हुक्म ये है कि मुजरिम के माल से दियत अदा कर दी जाए। 3. कत्ल खताए महज, इससे मुराद ये है कि इंसान किसी ऐसे काम का इर्तिकाब करता है जिसका होने वाले मकतूल के साथ कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर होने पर मकतूल इसका शिकार होता और मर जाता है। जैसे किसी शख्स ने शिकार की गर्ज से दाएं हाथ की सिमत एक तीर फेंका, लेकिन ये तीर किसी पत्थर से टकराकर किसी शख्स पर जा लगा और वो मर गया, तो उसे खताए महज कहते हैं। इसका हुक्म यह है कि दियत आकिल के जिम्मे होगी। किताबे हुदूदो दियात में आया है कि अगर हद या ताज़ीर का जारी करने वाला हद के इजरा में खता कर जाए और मुकर्ररा हद से ज्यादा सजा दे तो ख्वाह वो सजा पाने वाले की मौत का बायस बने या नहीं, दोनों सूरतों में उसकी तलाफी होनी चाहिए। ये मसला इसी किताब में मज़कूर एक मसले के अगर हद मुकम्मल और बगैर किसी गलती से जारी कर दी जाए लेकिन वो मौत का सबब बने तो क्या बैतुल माल या हद जारी करने वाला उसका जामिन है या नहीं, इससे ताल्लुक ये नहीं रखता। अगरचे इस मसले में कौले मशहूर जामिन न होना है, लेकिन ये हुक्म भी अशकाल से खाली नहीं है। फिर ये कि बाज शुरू शीन रे वाव है, शुरू में जो इन दोनों मसलों को मखलूत किया है वो दुरुस्त नहीं है और कलाम इमाम अलैहिस्सलाम का दूसरे मसले से कोई रब्त नहीं है। अब आइए यहाँ पर अगली हेडिंग आ गई है, इस्लाम में कत्ल के गुनाह की अहमियत। ये आगे चलते हैं, इसमें लिखा है कुरानी आयात और इस्लामी रिवायात में नाहक खून बहाने से मुताल्लिक कुछ ऐसी ताबीरात आई हैं जो किसी भी दूसरे मौजू के बारे में देखने को नहीं मिलती। जैसे सूरह माइदा की आयत नंबर 32 में इरशाद होता है, इन्वर्टेड कॉमा, इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर ये लिख दिया कि जो शख्स किसी को बगैर उसके कि वो किसी का कातिल हो या जमीन में फसाद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आगे चलते हैं, लिखा है कि सूरह निसा की आयत 93 में इरशाद बारी ताला है, इन्वर्टेड कॉमा, और जो कोई किसी मोमिन को कसदन कत्ल कर डाले उसकी सजा दोज़ख है जिसमें वो हमेशा रहेगा, उस पर अल्लाह ताला का गजब है, इसे अल्लाह ताला ने लानत की है और उसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आगे चलते हैं, लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा में के यहाँ पर के आतिश जहन्नुम में हमेशा रहना और खिलवत खेलाम वाउदाल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यानी आतिश जहन्नुम में हमेशा रहना और खिलवत की ताबीर से यूं मालूम होता है कि कत्ले अमद का मुर्तकिब ईमान की हालत में दुनिया से न जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ईमानदार शख्स हमेशा जहन्नुम में नहीं रहेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोबारा पढ़ लेते हैं इस लाइन को, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ईमानदार शख्स हमेशा जहन्नुम में नहीं रहेगा। फिर लिखा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आया है, इन्वर्टेड कॉमा, खुदा के नज़दीक दुनिया का वीरान होना इससे आसान तर है कि कोई खूने नाहक बहाया जाए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हवाला है मीज़ानुल हिकमत, जिल्द नंबर 10 सफ़ा 769 हिस्सा नंबर 4। एक और हदीस में इमाम मासूम अलैहिस्सलाम से नकल हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा तर्जुमा, कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा और अर्ज किया, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद जहीना
جیم ہے یہ نون ہے میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ راوی کہتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد پہنچے اور لوگوں کو اس بارے میں علم ہوا تو وہاں جمع ہونا شروع ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ عرض کیا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہیں معلوم۔ فرمایا مسلمانوں میں کوئی قتل ہو جاتا ہے اور کسی کو قاتل کے بارے میں معلوم ہی نہیں؟ اس ذات کی قسم جس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اگر تمام زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے خون میں شریک ہوں اور وہ اس پر راضی ہوں تو سب کے سب منہ کے بل جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ انورٹڈ کاما یہ مکمل ہوا ترجمہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے بہار الانوار جلد نمبر 101 صفحہ 383 حصہ نمبر 3۔ سامعین یہاں پر ہم نے مکتوب 53 کا 27واں حصہ مکمل کر لیا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔